Ajit, an employee of private sector transport company based in Mumbai, covered under Payment of Gratuity Act 1972, retires on 31st December 19. Students, so 1st April say 31st December 19 is 9 months. Okay, so any calculation if they ask per month basis, it should be multiplied with number. Sorry, if amounts are given on per month basis, we must multiply with 9. After providing, after service of 33 years and 7 months. At the time of retirement, his employer pays 6 lakh as gratuity and 2 lakh as accumulated balance of recognized provident fund. He is also entitled for a monthly pension. Monthly pension matlab students uncommuted pension for rupees 7,000. He gets 70% of the pension commuted for rupees 2 lakh on Feb 1st 2020. कभी commute किया 1st Feb को. Determine taxable income. Again the term is taxable income. Meaning of taxable income क्या है students? All 5 heads of income and deduction under section 80. Taxable income for the assessment year 2021 with the help of following information. Basic salary 1,35,000, 15,000 into 9 months का उन्होंने calculation किया है. Bonus 36,000, special allowance 55,000, HRA 45,000, 5,000 into 9. Rent paid by him 36,000, 3,000 into 12. Taxable value for HRA is nil. Employers contribution to recognized provident fund 18,000. Employers contribution. Ajit matlab employee. Ajit's contribution towards recognized provident fund is 20,000. Students, employee अगर contribute करता है तो it is covered under section 80C. Next, payment of insurance premium on 31st March 20 on own life insurance policy 15,000. Professional tax paid by Ajit 5,000. Income from other sources 2,07,500. Salary and pension falls due on last day of each month. Students, last day है हाँ. It is due on last day of each month. As per the terms of employment, Ajit and his family members can use deluxe buses operated by the employer company but only once in a year. Okay? तो जिस कंपनी में वो काम करता है ना, उसी कंपनी का वो बसेस यूज कर सकता है once in a year. Value of facility enjoyed by Ajit and his family members during October 2019 is 25,000. Sum of rupees 5,000 is recovered from Ajit. On official tour of Ajit to Delhi, March 20 से March 30, Mrs. Ajit accompanied him. Total expenditure incurred by employer on Mrs. Ajit is 25,000. Amount recovered from Ajit is 5,000. Okay, so he has retired in the month of December, 31st December. तो जो भी per month calculation होगा students, sorry, if any calculation is based on months, we must multiply with 9 students. ठीक है, so start करते हैं. Again students, top पे क्या लिखने का? Mr. Ajit, previous year 1920, assessment year 2021, legal status individual, residential status resident and ordinary resident. Then उसके बाद then we start with our calculations. तो calculation में पहले हम लोग क्या लिखते हैं? Salary and allowances. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट करते हैं. अभी किस पे ध्यान देना है? सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस ढूंढने हैं हमको. सैलरी मतलब स्टूडेंट्स बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, ओके, एनी टाइप ऑफ अलाउंसेस गिवन, ऑल दोज थिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट. तो वापस से देखते हैं स्टूडेंट्स. देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज एम्प्लॉयर पेज, ग्रेचुटी दिया है तो ग्रेचुटी तो लास्ट में आएगा. 2 लाख एज रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी सब लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं. He is entitled for a monthly pension, ये भी सब लास्ट में रिकॉर्ड. He gets 70% of pension commuted. ओके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स. बेसिक सैलरी 1,35,000, इट इज 15,000 इंटू 9. ऑलरेडी उन्होंने पर मंथ था 15,000, उसको मल्टीप्लाई बाई 9 करके हमको दिया है 1,35,000. स्टूडेंट्स मैं कैलसी ले लूँ जस्ट. ओके, 1,35,000 इज बेसिक सैलरी. देन बोनस दे हैव गिवन 36,000, special allowance 55,000. So we start with basic salary.
वी हैव 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, सो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में मैंने रिकॉर्ड किया 1,35,000. Then they have given us bonus. Bonus is also considered as salary, 36,000. फिर हमको क्या दिया था? स्पेशल अलाउंस. It was 55,000. Now this is not per month, हाँ students. ये 36 and 55 ऐसा ही लिखा था बस, okay? So it's not per month. They have not said per month. See, bonus 36,000, special allowance 55,000, HRA 45,000, 5,000 into 9. रेंट पेड बाय हिम, हमारे सिलेबस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, रेंट पेड बाय हिम का, सो जस्ट इग्नोर इट. आगे देखते हैं. टैक्सेबल वैल्यू निल, मतलब जो भी उसको HRA मिला है टैक्सेबल इज निल. टैक्सेबल निल मतलब एंटायर HRA इज एग्जेम्प्ट. क्वेश्चन सेज दैट टैक्सेबल वैल्यू निल. So question says that it means we can interpret in that way कि it is entirely exempt from tax. तो उसको लिखेंगे ही नहीं स्टूडेंट्स. फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, अजित्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, और कोई स्टूडेंट्स अलावेंसेस है? आई डोंट थिंक सो. बाकी सब फिर प्रोफेशनल टैक्स वगैरह. देन सैलरी एंड पेंशन फॉल्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, देन स्टूडेंट्स हम परक्विजिट्स ढूंढते हैं. ठीक है, और कोई अलावेंसेस हमको नहीं दिया है स्टूडेंट्स. सो नाउ विल स्टार्ट विद परक्विजिट्स. परक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, उसको क्या बेनिफिट मिला है कंपनी से. और परक्विजिट्स ज़्यादातर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नॉन कैश होते हैं. ठीक है, अलावेंसेस कैश में होते हैं, परक्विजिट्स जनरली नॉन कैश होते हैं. तो ढूंढते हैं वन सेकेंड स्टार्टिंग से. पहला ग्रेच्युटी है, फिर सम प्रोविडेंट फंड, फिर मंथली पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, बेसिक सैलरी रिकॉर्डेड, बोनस रिकॉर्डेड, स्पेशल अलावेंस रिकॉर्डेड, HRA वॉज एग्जेम्प्ट. ओके, employers contribution to provident fund, Ajit's contribution to provident fund, payment of insurance premium, professional tax paid by Ajit, income from other sources, salary, pension as per the terms of employment. Ajit and his family members can use deluxe buses operated by employer company. बस किसकी है स्टूडेंट्स? बस एम्प्लॉयर की है ना. तो एम्प्लॉयर ने उनको अलाउ किया है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर कंपनी कैन यूज दीज बसेस. ओके, साल में एक मरतबा आप यूज कर सकते हो फ्री में. ओके, सो दैट मीन्स इट्स अ परक्विजिट. अच्छा, देन दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी एंजॉयड बाय अजित एंड हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग October 19 इज 25,000. आगे क्या लिखा है? सम ऑफ ₹5,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम अजित. सो बिल यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये यूज ऑफ deluxe buses of एम्प्लॉयर की बसेस है ना स्टूडेंट्स. व्हाट इज द वैल्यू? 25,000 परक्विजिट का वैल्यू, बट 5,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम अजित, सो टैक्सेबल विल बी 20,000. ठीक है, परक्विजिट का वैल्यू जो उसने बसेस यूज़ किया उसका वैल्यू या उसका फेयर आप कहो जो भी था वो टोटल 25,000 था. ओके, बट एम्प्लॉयर रिकवर्ड 5,000 फ्रॉम अजित, अजित के पॉकेट से 5,000 गया, तो नेट बेनिफिट अजित को कितना मिला? नेट परक्विजिट 20,000. ठीक है स्टूडेंट, सिंपल कॉमन सेंस लॉजिकल है एकदम वो कि एम्प्लॉयर का खर्चा 25,000 हुआ बट ही रिकवर्ड 5,000 फ्रॉम एम्प्लॉय. सेम वे स्टूडेंट्स आगे पढ़ो. अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, on an official tour, clearly they have used the term official tour. ये official tour का है. तो अगर official tour है और अजित official tour पे जा रहा है तो everything will be exempt स्टूडेंट्स, है ना, कंपनी के काम से जा रहा है वो. बट आगे क्या है? on an official tour of अजित to Delhi, Mrs. अजित accompanied him. तो स्टूडेंट्स वाइफ साथ में जा रही है, सो वाइफ के लिए जो भी खर्चा होगा that will become now perquisite and it will be taxable. Once again, if it's an official tour, एम्प्लॉय कंपनी के काम से कोई टूर पे जा रहा है स्टूडेंट्स. ओके, दैट मीन्स फॉर सम ऑफिशियल वर्क, कंपनी के काम से जा रहा है. सो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दैट ऑफिशियल टूर बाय द कंपनी फॉर द एम्प्लॉयर विल बी एग्जेम्प्ट. समझ में आता है क्योंकि वो ऑफिशियल टूर है. बट एम्प्लॉय के वाइफ के लिए अगर कंपनी कोई खर्चा कर रही है, ओके, इफ कंपनी स्पेंडिंग सर्टन अमाउंट फॉर टूर ऑफ हिज for tour of his wife ना, in that case student she is not an employee of that company. वो इस कंपनी की एम्प्लॉय थोड़ी है, उसके हस्बैंड है ना एम्प्लॉय. तो वाइफ के लिए जो भी खर्चा होगा that becomes taxable students. तो मिसेस अजित accompanied him
टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन मिसेस अजित, है ना, वाइफ के लिए 25,000 खर्चा हुआ, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम अजित इज 5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑफिशियल टूर है तो दैट पार्ट विल नॉट बी टैक्सेबल विच इज इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अजित, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय वो कंपनी का। वाइफ के लिए जो खर्चा हुआ स्टूडेंट्स, ओके, सो वी कैन राइट टूर एक्सपेंसेस ऑफ मिसेस अजित, ओके, एम्प्लॉय की वाइफ का जो भी एक्सपेंस, अगेन 25,000 एक्सपेंस था बट 5,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम अजित, सो नेट परक्विजिट टैक्सेबल विल बी 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो परक्विजिट हो गया। नाउ पहला हमेशा सैलरी अलाउंसेस, ये सिर्फ 3 आइटम थे, परक्विजिट में 2 है। देन वो कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखो स्टार्टिंग में था वो यहाँ पे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 18,000 स्टूडेंट्स। Employers contribution to recognize provident fund is 18,000 के लिए लिखा है। अच्छा, फंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने पढ़ा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का लिमिट होता है 12% ऑफ सैलरी, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो पहले देखते हैं 12%। स्टूडेंट देखो उसका सैलरी मुझे पता है 1,35,000, डीए होता वो भी ऐड करता, अगर कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज है तो वो भी ऐड करना चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी में 3 चीज़ें ऐड होती है हमेशा। वेन एवर यू कैलकुलेट एनीथिंग बेस्ड ऑन सैलरी ना स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स बेसिक डीए एंड कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर। सिर्फ एक जगह ये कमीशन नहीं आता, इफ यू रिमेंबर, इफ ग्रेचुटी मिली एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज एप्लीकेबल, अगर उसमें कवर्ड हो तो कमीशन नहीं आता। बाकी पूरा सैलरी का जो चैप्टर है ना, वेन एवर यू मेक एनी कैलकुलेशन एज अ परसेंटेज ऑन सैलरी, इट मीन्स बेसिक डीए एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज। तो यहाँ पे डीए वगैरह तो नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपका सैलरी है। सो 1,35,000 का अगर मैं 12% फाइन करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, सो इट कम्स टू 16,200। और एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है वहाँ पे हमने देखा 18,000, तो एम्प्लॉयर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स दैट बिकम्स टैक्सेबल। तो मैं यहाँ लिखूंगा अभी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? 18,000। ठीक है, और स्टूडेंट्स लिमिट कितने की है? एग्जेम्प्ट आपको कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी। सो 12% ऑफ 1,35,000 है ना, आपका सैलरी 1,35,000 है ना, वहाँ पे आपको कुछ भी डीए वगैरह और कमीशन नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स इफ़ यू कैलकुलेट कम्स टू 16,200, तो ये 16,200 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट है दैट इज टैक्सेबल 1800। तो हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी। हाँ, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया है, अजित ने भी, बट दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। तो जब हम 80C पे पहुंचेंगे एट दैट स्टेज विल रिकॉर्ड इट, तो अभी जाने दो, फॉरगेट इट। ठीक है, सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी हो गया, और कुछ बाकी तो नहीं रह गया या पैरा में स्टूडेंट्स, वो कुछ प्रोफेशनल टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो लास्ट में आएगा। ओके, ये सब डन। नाउ अभी हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, ग्रेचुटी है, पहले ग्रेचुटी का कैलकुलेशन। कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उसका कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ तो नहीं करेंगे, चलो यहाँ करता हूँ, मैं शॉर्ट में खाली लिख देता हूँ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। नंबर 1 एक्चुअल, जो आपको एक्चुअल मिला वो लिखो, कितना मिला एक्चुअल? 6 लाख। नंबर 2 द लिमिट विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड हियर बाय द गवर्नमेंट 20 लाख। नंबर 3 कवर्ड कहा था कि नॉन कवर्ड स्टूडेंट्स? कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट उन्होंने कहा है। ठीक है, सो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का फॉर्मूला क्या है? सैलरी लास्ट ड्रॉन, जिस दिन आप रिटायर हो रहे थे उस दिन आपका सैलरी कितना था, इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन सिंपल था स्टूडेंट्स, 15,000 पर मंथ, बट उसमें डीए ऐड करने का, डीए नहीं दिया है, कमीशन ऐड नहीं होता बिकॉज दिस इज कवर्ड, कवर्ड के अंदर कमीशन नहीं आता, डीए इज नॉट गिवन, तो डीए नहीं दिया, जाने दो। 50 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस देखो यहाँ दिया था स्टार्टिंग में 33 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, सो कवर्ड है।
एक बार आप नंबर ऑफ मंथ्स 6 के ऊपर चला गया, एनी नंबर ऑफ मंथ्स इन एक्सेस ऑफ 6 शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. सो 33 ईयर्स एंड 7 मंथ्स कितना हो जाएगा? 34 ईयर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 34. तो स्टूडेंट्स 15,000 DA नहीं है इसके अंदर, इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 34. आंसर कम्स टू 2,94,231 रुपीज़ में होगा ऑब्वियसली. 294,231. विच एवर इज लेस स्टूडेंट्स, विच एवर इज लेस, 6 लाख, 20 लाख और दिस अमाउंट, विच एवर इज लेस. सो ऑब्वियसली 2,94,000 लेस है स्टूडेंट्स, है ना. 2,94,231. तो विल गो टू अवर एक्चुअल आंसर. वहाँ पे हमने ग्रेचुइटी लिखा नहीं था, चलो अभी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, सॉरी अभी लिख देता हूँ. ग्रेचुइटी ही रिसीव्ड 6 लाख, जो एक्चुअल मिला पहले वो लिखो. देन वी राइट लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. अभी जो हमें आंसर आया विच एवर इज लेस 294,231. So we'll subtract this 294,231. So students, answer will be 305,769. So this amount will be taxable. 305,769. So this amount is taxable. Gratuity हो गया. अब students pension भी दिया है, चलो pension पढ़ते हैं. See pension यहाँ पे था, starting में ही था. He is also entitled for a monthly pension of ₹7,000. Monthly मतलब uncommuted. Uncommuted pension students हमेशा taxable होता है for all the employees, whether you are from private sector or you are a government employee. अच्छा, retire कब हुआ था? 31 December. So obviously pension Jan से start हो जाएगी 1st Jan. Students अभी मैं commuted भी पढ़ देता हूँ. He gets 70% of pension commuted for ₹2 lakh on 1st Feb 2020. अभी आप लिखना नहीं students, please don't write, खाली अभी देखो यहाँ पे students, okay? प्लीज़ आप लिखना नहीं. तो अगर सपोज कम्यूटेड पेंशन नहीं दिया है तो आई विल राइट अनकम्यूटेड पेंशन. आई विल रिकॉर्ड अनकम्यूटेड पेंशन. देव सेट 7,000 पर मंथ. जैन से उसका पेंशन स्टार्ट होगा तो मल्टीप्लाई बाई 3. सो टोटल आंसर विल बी 21,000 इफ कम्यूटेड इज नॉट गिवन. बट कम्यूटेड दिया है तो स्टूडेंट्स यू कैन रिकॉर्ड दिस. फिर ये आंसर करेक्ट नहीं है. फिर कैसे रिकॉर्ड करने का? वी हैव डन इट बिफोर, नो नीड टू वरी. तो पहले क्या करो, बेटर कम्यूटेड पेंशन पे ध्यान दो स्टूडेंट्स. तो हम कम्यूटेड पेंशन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ कम्यूटेड पेंशन. सो वी स्टार्ट विथ, इट्स नॉट वर्किंग नोट, इट्स पार्ट ऑफ द आंसर. सेम उसी वर्किंग में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. वहाँ पे स्पेस नहीं हो स्लाइड पे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया. ओके, कम्यूटेड पेंशन. हाउ मच दिस गाय रिसीव्ड कम्यूटेड पेंशन स्टूडेंट्स? इसको मिला 2 लाख ऑन 1st Feb. वहाँ पे कहा भी है. देन स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने बताया था. ही कम्यूटेड हाउ मच? 70% ऑफ द पेंशन एंड ही रिसीव्ड 2 लाख. तो 100 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर. ओके, so 2 lakh into 100 divide by 70. Students, I'm sorry, एक मिनट. 2 lakh into 100 divide by 70. It comes to 2,85,714. So here I am recording 2,85,714. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, डज ही रिसीव्स ग्रेचुइटी? यस, उसको ग्रेचुइटी भी मिला था. हमने किया ना ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन. इफ़ यू रिसीव ग्रेचुइटी, अगर आपको ग्रेचुइटी मिलता है, सो दिस अमाउंट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. ये 2,85,714 जो आया, इसको डिवाइड बाय 3 करो. इफ़ यू डजन, इफ द एम्प्लॉय डजन रिसीव्स ग्रेचुइटी, डिवाइडेड बाय 2. तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपको परसेंटेज दिया है उसका इक्विवेलेंट अमाउंट भी नो. फाइन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई. इफ यू रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइड बाई 3. इफ यू डजन रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइड बाई 2. सो इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 95,238. सो दिस मच विल बी एग्जेम्प्ट. सो लेस, सॉरी, लेस exempt under section 10 subsection 10A. 95238. 95238. तो स्टूडेंट्स माइनस कर लेते हैं. आंसर विल बी 104762. 104762.
ओके, दिस मच बी टैक्सेबल। अच्छा, हमने कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट कर लिया, उसका आंसर आ गया। अभी भी अनकम्यूटेड बाकी रह गया ना, वो प्रीवियस स्लाइड पे है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी अनकम्यूटेड पेंशन उसका कितना फिक्स हुआ था, 7000 पर मंथ। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वंस अगेन बी केयरफुल। अभी देखो कैसा अनकम्यूटेड लिखेंगे। सो 7000 पर मंथ, 7000 multiply by, I will write only 1. Why 1? Because on 1st Feb onwards you commuted your pension. कम्यूट करने से क्या होगा, आपका अनकम्यूटेड जो है ना वो कम हो जाता है। वाई? बिकॉज वट एवर वॉज द फ्यूचर पेमेंट्स यू हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर इटसेल्फ। आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपने एम्प्लॉयर से इकट्ठा अमाउंट ले लिया, एडहॉक अमाउंट, लमसम अमाउंट यू कलेक्टेड नाउ इटसेल्फ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने कितना परसेंट कलेक्ट कर लिया, हाउ मच यू कम्यूटेड, 70%। तो अभी भी 30% अनकम्यूट रहेगा, तो विल राइट 7000 इंटू 30% and multiply by 2. Why multiply by 2? Feb and March. जैन में आपको पूरा 7000 मिलेगा, दिसंबर में आप रिटायर हुए थे 31 दिसंबर, तो जैन में पूरा 7000। बट 1st फेब यू कम्यूटेड योर पेंशन, कितना कम्यूट कर लिया, 70%। सो 30% अभी भी अनकम्यूटेड है, तो 7000 30% फेब एंड मार्च का पेंशन। तो 7000 इंटू 1 इज 7000, 7000 इंटू 30%, 2100 multiply by 2 will be 4200 plus 7000, so total आपका पेंशन हो जाएगा अनकम्यूटेड 11200। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पेंशन भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या था देखो वहां पे, सो सी ये हो गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही पेज, ओके। नाउ रुपीज 2 लाख एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब वो रिटायर हुआ ना तो उसके प्रोविडेंट फंड में पैसे थे 2 लाख, तो एम्प्लॉय को पैसे भी मिले। ऑलवेज एग्जाम स्टूडेंट्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में रिटायरमेंट के वक्त अगर प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है, इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टूडेंट्स, वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है वॉट एवर द अमाउंट। तो जाने दो उसको स्टूडेंट्स, फॉरगेट इट, हम बाद में उसका नोट लिख लेंगे। ये हो गया मंथली पेंशन 70% फेब से, डिटरमाइन टैक्सेबल, बेसिक सैलरी, बोनस, स्पेशल अलावेंस, HRA, रेंट पेड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अजिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन वो 80C में आएगा, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C, प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब ये सैलरी एंड पेंशन फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। स्टूडेंट्स इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स वाई देयर इज नो इफेक्ट। क्या कह रहा है वो, सैलरी और पेंशन फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या, एक ड्यू डेट होता है, हम लोग ड्यू डेट लिखते हैं, और एक रिसिप्ट, एंड विच एवर इज अर्लियर, ऐसा करते थे ना स्टूडेंट्स। सो अगर अप्रैल 2019 का सैलरी है तो ड्यू कब होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ नहीं बोला है, लास्ट डे ऑफ द मंथ मतलब 30 अप्रैल को। रिसिप्ट डेट उन्होंने कहा ही नहीं है स्टूडेंट्स, सो डोंट मेक एनी अजम्पशन। मई 19 का सैलरी कब ड्यू होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, सो 31 मई को। जून का कब होगा, 30 जून का, सो एंड सो फोर्थ। रिटायर कब हुआ, 31 दिसंबर को ना, सॉरी, सो दिसंबर 19 का सैलरी ड्यू कब होगा, 31 दिसंबर को। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ्स, और मैंने 9 मंथ से लिखा। अच्छा अब क्या करो स्टूडेंट्स, मार्च 2019 जो लास्ट ईयर आपका प्रीवियस ईयर है ना, पास्ट ईयर जो था, मार्च 2019 का सैलरी ड्यू कब होगा, ड्यू कब होगा, 31 मार्च 19, और 31 मार्च 19 मतलब पास्ट ईयर ना, तो मार्च 19 का सैलरी वो लास्ट ईयर में ही टैक्स हो चुका है। अगर ऐसा लिखा होता कि सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मार्च का सैलरी ड्यू कब होता स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 19 को हो जाता, और 1 अप्रैल 19 मतलब करंट ईयर में आ जाता, तो मार्च का सैलरी आपको करंट ईयर में टैक्स करना पड़ता। फिर करंट ईयर में आप 9 से मल्टीप्लाई नहीं करते, देन यू हैव टू काउंट फ्रॉम मार्च टिल दिसंबर, और मार्च टिल दिसंबर 10 मंथ्स हो जाता स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, आगे भी आएगा, नो नीड टू वरी। ओके, सो अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ है ना तो उससे कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इफ इट गोज टू द नेक्स्ट मंथ तो फिर वी मस्ट बी केयरफुल, फिर देखने का कितना मंथ्स हो रहा है, 10 11। ओके, सो व्हेनेवर दे से लास्ट डे ऑफ द मंथ ना स्टूडेंट्स, तो हमारा कैलकुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में वो रिटायर हुआ, सो 9 मंथ्स। ओके, सो हमने 9 मंथ्स का ही सब कैलकुलेशन किया, जहाँ भी पर मंथ था हमने मल्टीप्लाई बाय 9 ही किया है। तो दिस एडजस्टमेंट डजंट अफेक्ट अवर सॉल्यूशन, ठीक है, उसको भूल जाओ। नेक्स्ट क्या है फिर, ये हम कर चुके स्टूडेंट्स, ये एज पर द टर्म्स, ये परक्विजिट था, तो एवरीथिंग डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो चुका सब। तो अभी सैलरी का पहले टोटल कर लेते हैं, सैलरी का टोटल करना है अभी हमको, यहाँ तक हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे अब हम टोटल करेंगे।
सो पहला कितना था 1,35,000 प्लस 36,000 प्लस 55,000 प्लस 20 then again 20 then 1,800 305 769 plus 11,200 plus next slide पे 1,04,000 1,04,762 स्टूडेंट्स टोटल आता है 6,89,531 6,89,531 this is known as ग्रॉस सैलरी. देन इसमें से क्या माइनस करने मिलता है? कंपलसरी पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, कभी मत भूलना. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 और ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी कितना है? 6,89,531 विच एवर इज लेस. तो ऑब्वियसली 50,000 लेस है. एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है स्टूडेंट. हाँ, प्रोफेशनल टैक्स था स्टूडेंट. देखो अजीत ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया था, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स पेड प्रोफेशनल टैक्स है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में आता है. देखो कितना पे किया था मुझे याद नहीं है, यहाँ था समवेयर. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय अजीत 5,000 पर मंथ नहीं का है स्टूडेंट्स, मतलब वो टोटल है 5,000. दे हैव नॉट सेट पर मंथ. एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है. होता भी तो इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. उसका डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. तो 689 माइनस 50 माइनस 5,000 6,34,531 6,34,531 दिस इज नोन एज नेट सैलरी. हो गया स्टूडेंट्स. बट उन्होंने पूछा है टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? फाइन हाउस प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स, कोई रेंटल इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं है. अदर सोर्सेज है वो उन्होंने दिया था खुद उन्होंने स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एक ही लाइन का है, उसमें कोई डिटेल्स नहीं है. सो एक लाइन छोड़ के लीव अ लाइन एंड देन राइट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, तो वापस देख लेते हैं. यहाँ था स्टूडेंट समवेयर कहाँ गया? डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम कहीं तो था ना. इनकम फ्रॉम अदर, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,07,500. तो स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,07,500 2,07,500. तो स्टूडेंट्स टोटल कर लो प्लस 2,07,500 8,42,031. टोटल आपका आ रहा है 8,42,031. दिस इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम. ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, जो टोटल आता है उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. देन फ्रॉम दिस वी राइट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के डिडक्शन है. कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह उन्होंने दिया है. स्टूडेंट स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार वापस कहाँ पे था. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव्ड सो एंड सो. मंथली पेंशन हो गया, डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम, बेसिक सैलरी, ऑल दिस डन. रेंट पेड वगैरह, टैक्सेबल वैल्यू, रेगनाइज प्रोविडेंट फंड, हाँ यहाँ पे था. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट, दिस इज डन. अजित कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड ₹20,000, तो ये मिलेगा उसको 80C में. पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 31 मार्च 20 ऑन ओन लाइफ पॉलिसी 15,000, ये भी उसको मिलेगा. दोनों LIC प्रीमियम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 20 एंड 15. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 80C में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. किसने कंट्रीब्यूट किया? ये एम्प्लॉई ने. ओन कंट्रीब्यूशन, बेटर टर्म है राइट, ओन एम्प्लॉयर का नहीं, खुद का कंट्रीब्यूशन. और क्या स्टूडेंट्स? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. खुद के लिए वो पे कर सकता है, वाइफ के लिए पे कर सकता है एंड चिल्ड्रन के लिए. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज गिवन एज 18. अच्छा, बेटर मैं इनर कॉलम में लिखूँ तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स. बेटर इनर कॉलम 20 एंड 18. और कोई लाइफ 80C है क्या? Professional tax, so this is covered. Income from others, so the salary falls due as per the terms of employment. Ajit and his family members can so and so accompanied by him. हो गया स्टूडेंट, there is nothing else, बस ये है. तो स्टूडेंट्स इसका टोटल करते हैं. सो 20 एंड 18 का टोटल होता है 38,000. मैंने बताया था. और सॉरी, और 1,50,000 which ever is less.
ठीक है, ATC का ऐसा डिडक्शन कैलकुलेट किया जाता है. सो 38 या 150 विच इज़ लेस ऑब्वियसली 38,000. सो आउटर कॉलम में 38 होगा, माइनस करो 8,42,000 से 38,000 माइनस करेंगे 804,031. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम. ओके, सो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था. पहला सैलरी अलाउंसेस, फिर परक्विजिट, 2 ही परक्विजिट था, फिर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू RPF मैक्सिमम 12% कमिंग, फिर ग्रेचुटी था, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन. ओके, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन बताया था, वो कवर्ड, ये वर्किंग नोट है हमारा. देन ये आई एक्सप्लेन, वो लास्ट डे से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सैलरी फॉल्स ड्यू लास्ट डे ऑफ द मंथ. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंटायर सॉल्यूशन. एक पेज पूरा जाता है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए, वो नेक्स्ट पेज पे ही सब वर्किंग्स करने का. We're starting with number 11 students. Sujit, who is employed with ABC Private Limited. Okay, so again government employee तो नहीं है students वो. Up till September 2019, clearly उन्होंने कहा है up till September 19. हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स होता है प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 19. सो 30 सितंबर 19 मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ्स हुआ स्टूडेंट्स. तो 6 महीना तक उसी कंपनी में काम किया. गॉट द फॉलोइंग सैलरी एंड बेनिफिट्स. बेसिक पे 28,000 पर मंथ, बोनस एंड इंसेंटिव्स 10,000 पर मंथ, फ्री क्लब फैसिलिटी, दैट मीन्स परक्विजिट हुआ स्टूडेंट्स, फ्री है ना. सो एम्प्लॉयर्स एक्सपेंडिचर 3,000 पर मंथ, free services of cook, salary paid by employer 3,000 per month, free services of watchman security, salary paid by employer 2,500 per month, free education facility to Sujit's son at a school maintained by the employer, cost of education 950 per month, employer's contribution to recognized provident fund rupees 1,000 per month. Sujit also makes matching contribution. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोला है. On October 1st 2019 Sujit joins PQR. सितंबर में रिटायर हुआ, नेक्स्ट डे से उसने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया. ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000. Besides he gets conveyance facility for private use 12,000 being expenditure of the company. House and allowance 5,000 per month. Club facility expenditure of employer 2,000 per month. Employer's contribution to unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund. Rupees 2,500 per month. Sujit also makes a matching contribution. On Jan 10, 2020, PQR Limited pays 12,000 being accident insurance premium on life of Sujit. On Jan 10, 2020, PQR Limited purchases a cell phone for rupees 50,000 and same is given to Sujit for official as well as private use. On March 1st, 2020, company purchases a fridge for rupees 15,000 for the kitchen of Sujit. Okay, किचन सुजित का है, ज़रूरत उसकी है, कंपनी ने उसको फ्रिज दिया है. इन द टू केसेस ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू सुजित. मतलब सेल फोन का मालिक सुजित नहीं है, कंपनी ने उसको यूज़ करने के लिए दिया है. सेम वे फ्रिज का मालिक सुजित नहीं है, ओनरशिप स्टिल लाइज विद द कंपनी, तो उसको सिर्फ फ्रिज यूज़ करना है स्टूडेंट्स. ठीक है. Income from other sources 2,50,000. Determine taxable income of Sujit for the assessment year 2021 on the following assumptions. क्या assumption है? Salary in both the cases falls due on 1st of next month and paid on 7th of next month. Very important students. Sujit is neither a director nor a shareholder in ABC Limited and PQR Limited. Conveyance provided by PQR Private Limited can be used not only by Sujit but also by his family members. He resides in his own house. खुद के घर में रहता है. Okay students, now he has worked with the two companies, so दोनों का कैलकुलेशन सेपरेट होगा. पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे वॉट एवर अमाउंट्स he had received from ABC. जो पहला कंपनी ना, उससे उसको क्या क्या मिला, पहले वो पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे.
आफ्टर दैट देन अगेन विल स्टार्ट कि उसको PQR से कितना मिला सेकेंड कंपनी से, व्हाट ऑल दोज अमाउंट्स, फिर उसको लिस्ट करेंगे। तो पहले सिर्फ ABC कंपनी पे ध्यान दो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, यही पहला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सैलरी इन बोथ द केस मतलब आप ABC में काम करो या PQR में काम करो, दोनों के लिए सेम रूल एप्लीकेबल है। फॉल्स ड्यू ऑन 1st of next month and paid on 7th of next month। तो स्टूडेंट्स मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले ये डिस्कशन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एक ड्यू डेट होता है स्टूडेंट्स और एक होता है रिसिप्ट डेट, एंड वी से सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अप्रैल 2019 से, अप्रैल 2019। इसका ड्यू डेट कब आएगा, व्हाट द क्वेश्चन सेज 1st day of the next month, और रिसिप्ट डेट कब होगा 7th of next month, ठीक है, 1st day of the next month। तो अप्रैल का सैलरी कब ड्यू होगा 1st May 19 को, और रिसिप्ट डेट कब बोला है 7th of next month, 7th में, विच एवर इज अर्लियर, विच इज़ अर्लियर 1st May को आपका सैलरी टैक्स हो जाएगा। तो अगर मैं May 19 की बात करूँ तो 1st June 7th June, तो विच एवर इज अर्लियर 1st June। जून 19 की बात करें तो 1st July स्टूडेंट्स, 7th July, विच एवर इज अर्लियर 1st July। जुलाई 2019 की बात करें तो 1st August 7th August, सो 1st August विल बी द टैक्सेबल डेट। अगस्त 19 की बात की जाए तो 1st September 7th September, सो 1st September इज द टैक्सेबल डेट। सितंबर 19 की बात की जाए तो 1st October 7th October, तो 1st October। अब ये कंपनी में तो उसने सितंबर तक ही काम किया, अक्टूबर से नया कंपनी ज्वाइन किया। तो स्टूडेंट्स अगर अब सेकेंड कंपनी की बात करते हैं, अक्टूबर 19 की बात की जाए तो कब टैक्सेबल होगा 1st November 7th November, सो 1st November विच एवर इज अर्लियर, November 19 1st December 7th of December, विच एवर इज अर्लियर, December 19 1st Jan 20 को, है ना, 7th Jan 2020, तो 1st Jan 20 विल बी द टैक्सेबल डेट, विच एवर इज अर्लियर Jan 2020, सो कब ड्यू होगा 1st Feb 7th Feb, मैं पूरा डिटेल्स लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एंड सो 1st Feb 20, Feb 20 का सैलरी कब टैक्स होगा 1st March 7th March, सो 1st March 20। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्च का सैलरी ड्यू कब होगा 1st April या 7th April, विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर 1st April 20। 1st April 20 कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2021। तो स्टूडेंट्स 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 1920, सो मार्च 2020 का सैलरी विल बी टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मार्च का सैलरी हम लोग ये साल टैक्स नहीं करेंगे। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम April 19, अप्रैल में 2 3 4 5 6 मंथ्स पहला कंपनी का, 1 2 3 4 5 मंथ्स फ्रॉम PQ कंपनी, ठीक है। तो आपका PQ कंपनी से जो आपको सैलरी मिल रहा है ना, अगर क्वेश्चन में PQ कंपनी से जो भी अमाउंट्स पर मंथ होंगे प्लीज मल्टीप्लाई बाय 5। व्हाई, बिकॉज मार्च का आपका जो भी अमाउंट है इट विल बी टैक्सेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ये तो हमको सब 1920 में ही आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 1919 तो अप्रैल से लेके सितंबर तक जो भी सैलरी पहला कंपनी से मिल रहा है AB कंपनी, इट विल बी टैक्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बट अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करते हैं मार्च 2019 इसका ड्यू कब होगा 1st April 19 को, और ये रिसिप्ट कब होगा 7th April 19, विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर 1st April 19। और 1st April 19 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर हमारे सिलेबस में जो हमको एप्लीकेबल है 1920। सो लास्ट ईयर मार्च का सैलरी इज टैक्सेबल इन द करंट प्रीवियस ईयर। तो स्टूडेंट्स AB कंपनी से जो भी आपको सैलरी पर मंथ बेसिस होगा प्लीज मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स हो गया ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो PQ कंपनी से जो भी आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज मार्च 20 का सैलरी विल बी टैक्सेबल इन अप्रैल 20 विच इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट AB कंपनी जो पहला कंपनी है अप्रैल से सितंबर तो करंट ईयर में आ गया, लास्ट ईयर का मार्च का सैलरी
1st April, 7th April, whichever is earlier. So मतलब April 19, 1st April 19 is 1920, 1920 means current previous year, current financial year. So March 19 का salary will be taxed in the year 2019-20. तो स्टूडेंट्स इसके लिए AB कंपनी से जो भी अमाउंट्स मिलेगा वो 7 मंथ्स होगा. ओके, सो ये पहला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया. तो नाउ विल स्टार्ट विद कैलकुलेशन. अगेन स्टूडेंट्स पहले वो लिखने का, उसका नाम, मिस्टर जो भी नाम दिया है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, RNOR, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी वो लोग पूछेंगे. एंड देन वी स्टार्ट टू मेक कैलकुलेशन. पहला वो कौन सी कंपनी से रिटायर हुआ, उन्होंने कंपनी का नाम दिया है AB कंपनी. ओके, देन वी राइट सैलरी and allowances. ओके स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसे ही करने का. ओके, स्टार्ट करते हैं. सैलरी अलाउंसेस अब ढूंढ लेते हैं AB कंपनी से क्या क्या मिला. आ जाओ स्टार्टिंग से. 28,000 इज बेसिक, बोनस इंसेंटिव इज 10,000. तो बाकी सब तो शायद स्टूडेंट्स ना उसमें परक्विजिट ही है. कन्वेंस फैसिलिटी है, क्लब फैसिलिटी, PQR है, सॉरी. ABC से क्या मिला, बेसिक एंड बोनस. चलो पहले ये लिख लेते हैं, 28,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ. सो विल गो टू ईयर. बेसिक एंड बोनस इंसेंटिव मिला है इसको. बेसिक सैलरी 28,000 मल्टीप्लाई बाई कितना मंथ्स, मैंने एक्सप्लेन किया ना, 7 मंथ्स. AB कंपनी से जो भी अमाउंट आएगा 7 मंथ्स का होगा. 28,000 इंटू 7, सो इट कम्स टू 196 स्टूडेंट्स, 1,96,000, 1,96,000. ठीक है. देन उसको बोनस इंसेंटिव मिला स्टूडेंट्स 10,000 पर मंथ. अगेन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 7. आई हैव एक्सप्लेन द रीज़न, पहले ही हमने वो डिस्कस कर लिया वर्किंग नोट में. यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया वो. ठीक है, 7 मंथ्स AB और PQ के लिए 5 मंथ्स रहेगा. ठीक है, सॉरी. नाउ देन बोनस के बाद क्या है स्टूडेंट, देखो अभी और कोई अलाउंस नहीं है. अभी जो कुछ दिया है ना सब परक्विजिट है. फ्री क्लब फैसिलिटी, परक्विजिट का 3 लिस्ट होता है. ऑलवेज टैक्सेबल, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नेवर टैक्सेबल. ये क्लब फैसिलिटी टैक्सेबल रहेगा स्टूडेंट. एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर इतना. फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, फ्री गार्डनर, सर्विसेज ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, कुक. अगर आपको याद आया हो ना स्टूडेंट, दिस इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, आइदर द पर्सन इज एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी. एम्प्लॉय के साथ में वो डायरेक्टर भी हो कंपनी में, और ही इज अ शेयर होल्डर एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एंड फाइनली और वॉट, उसका सैलरी ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 50,000 शॉर्ट में स्टूडेंट्स. तो देखो यहाँ क्या कहा है, पॉइंट नंबर 1 में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है उन्होंने. salary, I'm sorry, not point number 1, point number 2, he is neither a director nor a shareholder. तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनना है ना, या तो आप डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर. तो जो डायरेक्टर भी नहीं है, शेयर होल्डर भी नहीं है, बट एक थर्ड पॉइंट भी तो होता है ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए. देयर इज ऑल्सो वन मोर कंडीशन. अगर पहला 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जाने दो, बिकॉज इट इज और ऐसा है ना, आइदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर और योर सैलरी शुड बी 50,000. स्टूडेंट्स उसका सैलरी तो 50,000 से ज़्यादा है, ये देखो है ना, और ये 196 में और 70 ऐड कर लेंगे तो मच मोर देन दैट स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका सैलरी ज़्यादा है. एंड आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 196 माइनस 70 माइनस 50, फिर भी उसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा ही आएगा. और मैंने कहा था स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इतना कम सैलरी किसी का नहीं होता कि पूरे साल का सैलरी, एनुअल सैलरी लेस देन 50,000. सो प्रैक्टिकली तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो सारे एम्प्लॉइज़ अभी नाउ दे आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो फ्री गार्डनर, वॉचमैन, कुक टैक्सेबल होगा. तो पहले हम लोग परक्विजिट हेडिंग लिख लेते हैं. परक्विजिट्स, फिर एक एक करके अभी रिकॉर्ड करेंगे, जो टैक्सेबल होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके, विल स्टार्ट अगेन यहाँ से. फ्री क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉयज एक्सपेंडिचर 3,000 पर मंथ. फ्री क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने आपके लिए कितना खर्चा किया, 3,000 एंड पर मंथ. सो मल्टीप्लाई बाय 7 स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके, नेक्स्ट और क्या था,
सॉरी यहाँ पे थे ना, फ्री क्लब फैसिलिटी 3000 पर। फ्री सर्विस ऑफ कुक टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, कितना है अगेन 3000 पर मंथ। फ्री सर्विस ऑफ वॉचमैन टैक्सेबल होगा अगेन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका एम्प्लॉय इसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो ही इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कितना है 2500 पर मंथ। देन फिर क्या है स्टूडेंट्स उसके बाद, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू एक्स सन, ये भी टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए 3 परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं, फ्री गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, फ्री सर्विस ऑफ गार्डनर वॉचमैन कुक, हमने नोट्स में लिखा था, एंड फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन स्टूडेंट्स इन अ स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। बट उसका लिमिट है 1000 पर मंथ का, 1000 पर मंथ का। और यहाँ पे देखो उसने कितने का प्रोवाइड किया एजुकेशन फैसिलिटी, 950 पर मंथ। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अभी ये टैक्सेबल नहीं होगा। 1000 रुपीज से ज़्यादा होता तो टैक्सेबल होता। तो ये दो तो टैक्सेबल है स्टूडेंट्स, फ्री सर्विस ऑफ कुक, फ्री सर्विस ऑफ वॉचमैन, ये तो पक्का टैक्सेबल है, तो ये दो चीज़ हम लिख लेते हैं। फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, हाउ मच दे हैव सेड 3000। सो अगेन 3000 इंटू 7 करेंगे स्टूडेंट्स, रीज़न आपको पता है ऑलरेडी कि 7 क्यों कर रहे हैं। देन फ्री सर्विसेज ऑफ वॉचमैन, सिक्योरिटी भी मिला है आपको, 2500 अगेन पर मंथ। सो 2500 इंटू 7 करेंगे, 17500। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, ये ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि ये टैक्सेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज लेस देन 1000 पर मंथ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेगनाइज प्रोविडेंट फंड, और कुछ मिला था ये कंपनी से उसको ग्रेचुटी वगैरह, क्योंकि वो ऐसा रिटायर तो नहीं बोला, जस्ट हु इज एम्प्लॉयड अप टिल 30 सितंबर, रिटायर तो नहीं कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक बचा ये अभी, हाँ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेगनाइज प्रोविडेंट फंड इज 1000 पर मंथ। स्टूडेंट 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 7, सॉरी हाँ 7 मंथ्स करेंगे तो 7000 आएगा। एंड व्हाट इज द लिमिट स्टूडेंट्स, 1000 into 7 is 7000. Employers contribution to which fund they have said, recognized provident fund क्या unrecognized, employers contribution to recognized provident fund students, ये recognize का है ना, तो recognized provident fund का लिमिट कितने का है, 12% ऑफ सैलरी। तो मुझे सैलरी मेरी पता है 1,96,000, डीए वगैरह दिया नहीं है तो भी ऐड करता, 1,96,000 का 12% करो, इट कम्स टू 23,520, 23,520। ठीक है स्टूडेंट्स, और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया, 1000 पर मंथ। सो 1000 इंटू 12, सॉरी 1000 इंटू 7 करेंगे तो 7000 आएगा। सो लिमिट इज 23,520 बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 7000। तो स्टूडेंट्स मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, मैं उसका नोट लिख दूंगा, नो नीड टू वरी, मैं उसका बाद में नोट लिख दूंगा। चलो ये भी हो गया। अब क्या बचा उसके बाद, और कुछ बचा ए बी कंपनी से, नहीं स्टूडेंट्स डन। अब अक्टूबर से स्टार्ट हो जाओ PQR। तो स्टूडेंट्स PQR से क्या क्या मिला, मंथली सैलरी 10,000, ही गेट्स कन्वेंस फैसिलिटी फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ बोला है तो टैक्सेबल, अच्छा मंथली सैलरी है, बट कन्वेंस फैसिलिटी मंथली नहीं है, ध्यान रखना हाँ स्टूडेंट्स। सो विल रिकॉर्ड दिस, पहला उसका कंपनी का नाम लिखते हैं, PQR कंपनी है, PQR लिमिटेड। पहला सैलरी 10,000 पर मंथ, हम डिस्कशन कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करना स्टूडेंट्स, 50,000। ओके, फिर उसको क्या मिला था वहाँ से सैलरी के अलावा, भूल गया मैं, कन्वेंस फैसिलिटी स्टूडेंट्स 12,000। एंड वहाँ पे क्लियरली फॉर प्राइवेट यूज़ भी है वो, इसके लिए टैक्सेबल, पर मंथ नहीं कहा है स्टूडेंट्स, सो आउटर कॉलम में डायरेक्टली 12,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या था, सैलरी 10,000 पर मंथ, बिसाइड्स ही गेट्स कन्वेंस फैसिलिटी डन बीन एक्सपेंडिचर, हाउस एंड अलावेंस 5,000 पर मंथ। बस लास्ट में देखो, ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, HRA लेते हो मगर खर्चा नहीं करते हो स्टूडेंट्स, यू आर सेविंग इट, यू गॉट HRA फॉर व्हाट पर्पस, कि स्पेंड इट ना, किराए का घर लो और किराया पे करो, इज नॉट स्पेंडिंग बिकॉज ही स्टेज इन हिज ओन हाउस। 5,000 पर मंथ, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, तो 5,000 इंटू 5 विल बी 25,000, हो गया। नेक्स्ट HRA के बाद और क्या मिलता है उसको, HRA 5,000 पर मंथ, क्लब फैसिलिटी टैक्सेबल होगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर 2,000 पर मंथ,
तो चलो क्लब फैसिलिटी परक्विजिट में आता है. सुजित ऑल्सो मेक्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम भी परक्विजिट में. सेल फोन मतलब भी परक्विजिट ही दिया है स्टूडेंट्स सब. तो नेक्स्ट विल राइट परक्विजिट्स. परक्विजिट्स फ्रॉम PQR कर रहे हैं हम लोग. ओके स्टार्ट करते हैं. पहला क्या मिला उसको परक्विजिट स्टूडेंट्स. क्लब फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस 2000 पर मंथ. क्लब फैसिलिटी टू 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 करो सो इट कम्स टू 10,000. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ मैं. नेक्स्ट और क्या उसको परक्विजिट मिला देखो. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट बाद में डिस्कस करते हैं. सुजित ऑल्सो मेक्स ऑन Jan 10 PQR लिमिटेड पेज 12,000 एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा ना एम्प्लॉयर, इट लाइज इन द फर्स्ट लिस्ट. ये परक्विजिट फिर टैक्सेबल हो जाता है. बट ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम है या हेल्थ इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम प्रीमियम है पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट. ये थर्ड लिस्ट में आता है स्टूडेंट्स, हमने लिखा था. तो ये एग्जेम्प्ट है. ओके ऑन Jan 10 PQR लिमिटेड परचेज अ सेल फोन. आपको सेल फोन मिला, हमने नोट्स में लिखा सेल फोन और लैपटॉप कंपनी से अगर मिलता है स्टूडेंट्स तो वो एग्जेम्प्ट होता है. तो जाने दो कोई भी कीमत हो उसकी. ओके वट एवर द प्राइस गिवन जस्ट फॉरगेट इट. आगे क्या मिला उसको. March 1 कंपनी परचेज अ फ्रिज फॉर ₹15,000 फॉर द किचन ऑफ सुजित. इन द टू केसेस ओनरशिप ऑफ द एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड. मतलब फ्रिज खरीद के उन्होंने सुजित को हमेशा के लिए नहीं दिया है. व्हाट दे आर सेइंग यू कैन यूज इट. तो ऐसे केस में अभी ये टैक्सेबल होगा. सेल फोन एंड लैपटॉप इज नॉट टैक्सेबल. आपके लिए कंपनी ने AC खरीद के दिया, फ्रिज खरीद के दिया, ऐसा कोई गुड्स कंज्यूमर गुड्स खरीद के दिया, इट इज टैक्सेबल स्टूडेंट्स एंड 10% ऑफ द अमाउंट. सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ मैं. सो विल राइट कॉस्ट ऑफ फ्रिज. बट पूरा कॉस्ट नहीं स्टूडेंट्स, वहाँ पे रूल ऐसा है 10% लिखने का. तो फ्रिज का कॉस्ट 15,000 दिया है, आप यूज़ कर रहे हो तो 10% विल बी टैक्सेबल. 15,000 इंटू 10% विल बी 1,500. ओके यहाँ तक हम हो चुके थे क्लब फैसिलिटी. तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा उसको. ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स. तो सेल फोन तो एग्जेम्प्ट है. और क्या है फिर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके नाउ एक ये रह गया था स्टूडेंट. देखो ये अनरेकग्नाइज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. हमने प्रोविडेंट फंड 3 तरह के डिस्कस किए नोट्स में. रेकग्नाइज, अनरेकग्नाइज एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. इफ यू रिमेंबर, इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वॉट एवर द अमाउंट. वो 12% का लिमिट ना सिर्फ रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एप्लीकेबल है. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड contribution made by employer is totally exempt. तो उसको भूल जाओ. ओके स्टूडेंट्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो सब कुछ हो गया. वंस अगेन मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ. कोई मिस ये बेसिक हमने लिखा था, बोनस लिखा. फ्री क्लब फैसिलिटी रिकॉर्डेड, फ्री सर्विस ऑफ कुक रिकॉर्डेड, फ्री सर्विस ऑफ वॉचमैन, फ्री एजुकेशन एग्जेम्प्ट था बिकॉज इट वाज लेस देन 1000. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इट वाज विद इन 12%, इसके लिए हमने एग्जेम्प्ट किया. फिर PQR का सैलरी लिखा बिसाइड्स 12,000 ये हमने लिखा. HRA लिखा हमने क्यों. बिकॉज ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस. क्लब फैसिलिटी लिखा ना 2000 इंटू 5. जस्ट लेट मी चेक, भूल नहीं गया हूँ मैं. हाँ क्लब फैसिलिटी लिखा 2000 इंटू 5. ओके नेक्स्ट क्या था. एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम इज एग्जेम. प्रोविडेंट फंड मैंने कहा कि वॉट एवर द अमाउंट अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम. सेल फोन एग्जेम्प्ट होता है. हाँ फ्रिज 10% टैक्सेबल. देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मतलब सैलरी सब कुछ हो गया स्टूडेंट्स. अभी आपको टोटल करना है सैलरी. तो स्टूडेंट्स टोटल करेंगे. यहाँ पे टोटल करना है हमको. स्टार्टिंग से टोटल करेंगे. सो स्टार्टिंग वाज फ्रॉम ईयर 1,96,000 प्लस 70 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 17,500 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 10. नेक्स्ट स्लाइड पे कितना है 1,500. स्टूडेंट्स टोटल कम्स टू 4,24,000. 424 टोटल आता है. 4,24,000. दिस इज नोन एज ग्रॉस सैलरी. फिर आपको डिडक्शन मिलता है. एक तो कंपलसरी है. कौन सा कंपलसरी है. स्टैंडर्ड डिडक्शन. कैसे मिलता है वो. 50,000 लो या फिर और
424 लो, विच एवर इज लेस। तो स्टूडेंट्स 50,000 लेस है। देर इज़ नो प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटेडम अलाउंस। होता भी एंटेडम अलाउंस तो डिडक्ट करने नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। So 3,74,000 is your net salary। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया है स्टूडेंट, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो बेटर अच्छा रहता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना था? 2 लाख समथिंग था ना स्टूडेंट, 2,50,000 था स्टूडेंट, 250। सो टोटल कर लो, इनकम ऐड होगा ना, 374 प्लस 250, 624। दिस इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में बहुत लोग इसको GTI कहते हैं, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अगर कोई डिडक्शंस है तो क्लेम कर लो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कुछ होगा या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। देखते हैं स्टूडेंट स्टार्टिंग से, यहाँ तो था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1000 पर मंथ। सुजित ऑल्सो मेक्स मैचिंग कंट्रीब्यूशन। सुजित भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो मिलेगा ना आपको 80C में, 80C में आता है वो। सो लाइक 80C और ऐसा लिखना, ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टूडेंट्स देखो मैं कितना लिख रहा हूँ, 1000 उसका एम्प्लॉयर करता है एंड दे आर सेइंग मैचिंग कंट्रीब्यूशन। सो मैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर रहा हूँ, ऊपर सब 75 मैंने किया। नाउ स्टूडेंट्स वो जब उसने भले जॉब छोड़ दिया हो तो हो सकता है ना, अभी भी वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि उसने वो जॉब छोड़ा पहला कंपनी का तो कंट्रीब्यूशन भी बंद कर दिया। सो दैट वाज नॉट कनेक्टेड टू योर जॉब। जॉब है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ़ यू हैव सरप्लस कैश, आपके पास पैसे हैं तो आप थ्रू आउट योर लाइफ कर सकते हो ना, जॉब रहे या नहीं रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ उसने पूरा साल किया 1000 रुपीज़, सो 12,000 टोटल मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रीज़न। सो डोंट कंसिडर 1000 into 7 स्टूडेंट्स। माई एडवाइस 1000 into 12 ही बेटर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जॉब वहाँ से छोड़ दिया तो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी बंद कर दिया हो, नहीं। ये आपका ओन है ना, ओन मतलब आपके जॉब से कनेक्टेड नहीं है। ये आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर के लिए, ओके, ओल्ड एज के लिए, अभी से आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, सो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया 1000 पर मंथ। सुचित ऑल्सो मेक्स, हाँ फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कुछ था क्या, ही गॉट कन्वेंस। यहाँ देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड 2,500 पर मंथ। सुजित ऑल्सो मेक्स अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। बट स्टूडेंट्स ये अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है ना, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है 80C में। अगर एम्प्लॉय अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करता है, ही कान क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इट्स नॉट अलाउड। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम तो परक्विजिट था, छोड़ दो उसको, और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग एल्स, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। ये 12,000 और 1,50,000 विच एवर इज लेस है ना, सो 12,000 ही लेस होगा 80C में। तो 624 माइनस 12 करेंगे तो 6,12,000। दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम। अभी हमने क्या क्या इग्नोर किया, आपके लिए पॉइंट लिख देता हूँ, सॉरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर मंथ, वो 1000 into 7 था, 7,000 इज लेस दैन 12% ऑफ सैलरी। वो सैलरी आपका 1,96,000 था, हेंस एग्जेम्प्ट। इसके लिए हमने उसको लिखा ही नहीं क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ऊपर मैंने एम्प्लॉयर लिखा ना, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज, UR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, URPF, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80C। 80C में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन ना, वंस अगेन एम्प्लॉयर्स पेमेंट ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो लिख दिया था वहाँ पे, एक्सीडेंट प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट है स्टूडेंट्स, परक्विजिट है बट एग्जेम्प्ट होता है, थर्ड लिस्ट में आता है। तो ये मैं पॉइंट्स आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, और कुछ ऐसा पॉइंट तो खास था नहीं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी हैव डिस्कस दैट।
हाँ, वो सेल फोन तो एग्जाम्प्ट होता है, आपको पता है, नोट्स में लिखा। और ये किचन का, वो फ्रिज का हमने 10% लिया, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स, सो दिस इज ऑल्सो डन। सो स्टूडेंट्स, पहला हमने डिस्कस ये किया था, वो ड्यू और रेसिप बेसिस मैंने समझाया आपको कि वाई 7 months एंड वाई 5 months, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। एंड देन यहाँ से सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, पहला ए बी कंपनी का कैलकुलेशन किया, फिर पी क्यू आर का किया। इसमें कोई ग्रेचुटी, लीव, सैलरी वगैरह नहीं है। एंड देन दीज पॉइंट्स आई हैव रिकॉर्डेड फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक एम्प्लॉयर का, उसका चिल्ड्रन का कुछ परक्विजिट था ना, एजुकेशन फैसिलिटी, स्टूडेंट, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन। मैं एजुकेशन अलावेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर का स्कूल है, उसमें उसके चिल्ड्रन वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। सो एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन अप टू ₹1000 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। क्वेश्चन में हमको सिर्फ 950 दिया था ना, तो इट इज़ विद इन द लिमिट, इसके लिए हमने उसको एग्जेम्प्ट रखा, 1000 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। ओके स्टूडेंट, URPF मतलब अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। Number 12. Ranjit, an employee of Z Limited, receives the following emoluments during the previous year ending 31st March 2020. Salary rupees 5 lakh, bonus 22,000, salary and leave 5,000, entertainment allowance 30,000. Besides aforesaid emoluments, he gets free gas water. Free gas water मतलब perquisite, और ये free gas water किसको टैक्सेबल होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। वेदर मिस्टर रंजित इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यस, उसका सैलरी देखो 5 लाख है। आपका अगर सैलरी, इफ द एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन 50,000 पर एनम बेसिस, देन यू बिकम ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट्स, हमको यहीं से मालूम पड़ गया वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। नाउ वेदर इज अ डायरेक्टर और नॉट अ डायरेक्टर, वेदर इज अ शेयर होल्डर और नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। इफ योर सैलरी एक्सीड्स 50,000 ऑन पर एनम बेसिस, you become a specified employee, and then this perquisite is taxable. Free gas water for his domestic use cost 15,000. Same with domestic servant, taxable होगा, salary paid by employer 18,000. Concessional education facility for his family members in a school maintained by it. Cost of education, Ranjit's son 50,000. Amount paid by Ranjit 10,000. Ranjit's dependent sister 50,000. अमाउंट पेड बाय रंजीत 19,000. ये हम लोग डिस्कस करेंगे. फ्री मील्स हमने नोट्स में लिखा है, फ्री मील्स इज अलाउड इन ऑफिस, एट ऑफिस इट इज अलाउड, बट कितना अलाउड होता है स्टूडेंट्स? अप टू 50 रुपीज़. यहाँ पे उसको 60 मिला है, ध्यान रखना, मतलब 10 रुपया एक्सेस है ना स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल. ये ध्यान रखना, 60 अप टिल 50 रुपीज़ पर डे इट इज अलाउड. फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी एट शिमला कॉस्ट 25,000, ये टैक्सेबल होगा. सैलरी ऑफ कुक टैक्सेबल बिकॉज क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है. फ्री गार्डनर वॉचमैन कुक ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आता है. एंगेज बाय रंजित इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर. ऑन March 10, 2020 रंजित परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर मिसेस रंजित. अपनी वाइफ के लिए उन्होंने कुछ जेवरात ज्वेलरी खरीदी है फॉर ₹1 लाख. पेमेंट इज मेड बाय क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द कंपनी. अच्छा, क्रेडिट कार्ड कंपनी का है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वो क्रेडिट कार्ड का ड्यू भी कौन क्लियर करेगा? कंपनी करेगी. अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड यूज किसके लिए हुआ है? प्राइवेट पर्पस के लिए, ऑफिशियल नहीं. क्यों? ये क्रेडिट कार्ड से रंजीत ने वाइफ के लिए ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं, ज्वेलरी खरीदी है. ओके, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया. अब ये पर्सनल एक्सपेंस का पेमेंट कौन करने वाला है? कंपनी करेगी. क्यों? बिकॉज कार्ड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. तो कंपनी एक परक्विजिट दे रही है उसको, और ये परक्विजिट पर्सनल हो गया ना स्टूडेंट्स, तो ये टैक्सेबल होगा. आगे सो में 1 लाख पूरा टैक्सेबल. March 31, 2020 कंपनी सेल्स अ फ्रिज फॉर ₹10,000. सेल्स बोला है, प्रीवियस क्वेश्चन में सेल नहीं किया था, वहाँ क्या लिखा था? ओनरशिप ऑफ दैट एसेट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी. कंपनी ने आपको फ्रिज दिया था सिर्फ यूज करने के लिए. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कंपनी आपको फ्रिज बेच रही है. कंपनी सेल्स द फ्रिज फॉर ₹10,000. कॉस्ट ऑफ द फ्रिज टू द कंपनी ₹65,000. Date of purchase was June 10, 2017. It is used for business purpose before its transfer to Ranjit. रंजीत को ट्रांसफर करने से पहले. रंजीत कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,500 टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. रंजीत ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो ये 80C में जाएगा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹15,000, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा. फर्दर ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर रंजीत हैज परचेज ₹1,20,000 डिबेंचर्स ऑफ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मतलब 80C. ही पेड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज डिपेंडेंट चिल्ड्रन 5,000.
and for independent parents 30,000. Determine taxable income for the assessment year 2021 if Ranjit is neither a director in the employer company nor he has a substantial interest. ये sentence पढ़ोगे ना, neither a director nor has a substantial interest, मतलब वो specified employee नहीं है, but उसका salary, since his salary is above 50,000, it is 5 lakh per annum, so he becomes a specified employee. वो specified employee फिर भी होगा. He is neither director nor has a substantial interest in employer company. Income from other sources is 3 lakh. Okay students, तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अभी यहाँ पे वो कुछ ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स, सैलरीज ड्यू ऑन दिस डे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना. जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेचुटी पेंशन कुछ भी नहीं है, खाली परक्विजिट्स पे थोड़ा ध्यान रखना है हमको. अगेन स्टूडेंट्स उसका नाम वगैरह लिखना कंपलसरी है, नेवर फॉरगेट दैट, भूलना नहीं कभी भी स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट विथ सैलरी एंड अलावेंसेस. पहले हमेशा सैलरी अलावेंस, फिर परक्विजिट, फिर उसके बाद ग्रेचुटी पेंशन प्रोविडेंट फंड्स वगैरह लिखा जाता है. ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे था सैलरी कितना बोला है 5 लाख, बोनस 22,000, सैलरी इन क्या लिखा, सैलरी इन लीव ऑफ लिव 5,000. ओके सो पहला सैलरी कितना बोला उन्होंने, सैलरी 5 लाख, सो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी 5 लाख. अगेन डीए वगैरह तो कुछ दिया नहीं है स्टूडेंट, सैलरी 5 लाख. देन बोनस 22,000, सैलरी एक्चुअली इन लीव ऑफ लीव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लीव सैलरी. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट लीव सैलरी. और स्टूडेंट्स ये लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है क्या? नो, ही हैज़ नॉट रिटायर्ड फ्रॉम दिस कंपनी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था. सो इफ लीव सैलरी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. आपको याद है, सेम इज द रूल फॉर ग्रेचुटी, वेदर यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. If leave salary is received during service, मतलब before retirement, same way for the gratuity, then it is taxable. Students ध्यान रखना, taxable होता है. चलो ठीक है, तो लीव सैलरी हो गया. उसके बाद क्या था, सैलरी ये हो गया, सैलरी बोनस सैलरी लीव. एंटरटेनमेंट अलाउंस 30,000. फिर उसके बाद सब परक्विजिट है स्टूडेंट्स सब ना. चलो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देन आई विल रिकॉर्ड ऑल परक्विजिट्स वन बाय वन. एंटरटेनमेंट अलाउंस, नाउ दे हैव नॉट सेड पर मंथ, बस 30,000 का है उन्होंने, सो हम लोग भी जस्ट 30,000 लिख लेंगे. नाउ वी स्टार्ट विद परक्विजिट स्टूडेंट, एक एक करके पढ़ते जाते हैं. फ्री गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है क्योंकि ही इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है बिकॉज ही इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. फिर वो एजुकेशन बाद में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये दो रिकॉर्ड करते हैं. फ्री गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस वाटर फॉर इज डोमेस्टिक यूज एंड डोमेस्टिक सर्वेंट. ओके ये पहले दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ आई एम रियली सॉरी. एक मिनट, हाँ, लेट मी एडजस्ट दिस. ओके सो वी स्टार्ट विथ परक्विजिट्स नाउ. क्या था, फ्री गैस वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, घर के लिए दिया है ना, ऑफिस के लिए नहीं दिया है स्टूडेंट. डोमेस्टिक यूज़ इट इज़ गिवन एज 15,015. देन स्टूडेंट्स कुछ services, free services of domestic servant, free services of domestic servant, that was given as 18,000.
अच्छा, अब एजुकेशन फैसिलिटी अप टिल 1000 पर मंथ अलाउड है स्टूडेंट्स इफ इट इज प्रोवाइडेड टू हिज चिल्ड्रन। बट देखो किसको किसको प्रोवाइड किया है, ध्यान से पढ़ो। ईयर कहाँ तक आ गए हम लोग? दिस इज डन, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, दिस इज डन, इंटर्म अलाउंस डन, बिसाइड्स अपोजिट्स ही गेट्स 15,000 डन, 18,000। या कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी फॉर हिज फैमिली मेंबर्स इन स्कूल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज रंजीत सन 50,000, उसके लड़के के लिए 50,000। अमाउंट पेड बाय रंजीत, ठीक है, एम्प्लॉयर का खर्चा 50,000 हुआ, उसने रंजीत से 10,000 ले भी लिया स्टूडेंट्स। ओके सो स्टूडेंट्स, बट अच्छा ये फ्री नहीं है, व्हाट दे हैव यूज्ड द टर्म कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। ओके, कंसेशनल मतलब पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, रंजीत अपने लड़के की फीस भरेगा, एंड पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसकी कंपनी विच इज द जेड लिमिटेड। सो दिस विल बी टैक्सेबल, बट कितना टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली 50,000 माइनस 10,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग concessional, again it's a perquisite na, concessional educational facility to his son। employer का खर्चा 50,000 but he recovered 10,000 from employee, so taxable will be 40,000। सेम वे स्टूडेंट्स वहाँ पे देखो ऐसे एक और खर्चा है, किसका है? रंजीत्स डिपेंडेंट सिस्टर, rupees 50,000, amount paid by Ranjit 19,000। so again it's like a concessional facility, concessional education facility for sister, 50,000 minus कितना था वो स्टूडेंट्स? 19,000। सो 50 माइनस 19 करेंगे तो 31,000 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? और कोई परक्विजिट हैं? और भी हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्री मील्स इन ऑफिस अप टिल 50 इट इज़ अलाउड, बट आप 60 मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया आपने, 10 रुपीज़ एक्सेस हो गया, अबाउ 50 चला गया, सो दैट 10 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल स्टूडेंट्स। सो फ्री मील्स एट ऑफिस 10 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल, 10 रुपीज़ पर डे। हाँ, फ्री मील्स एट प्लेस ऑफ वर्क, या मैं लिख सॉरी मैंने एजुकेशन, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, वो तो एजुकेशनल था, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स डाला था, ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स, सॉरी। फ्री मील्स एट प्लेस ऑफ वर्क या एट ऑफिस, राइट, ओनली 10 इंटू 300 डेज उन्होंने कहा है, सो 3,000। बिकॉज अप टिल 50 इट इज एग्जेम, तो एक्सेस 10 रुपीज टैक्सेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज डन। फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी एट शिमला, कॉस्ट 25,000। सैलरी ऑफ कुक, ये दोनों टैक्सेबल है स्टूडेंट, हॉलीडे होम फैसिलिटी भी टैक्सेबल होगा और सैलरी ऑफ कुक भी टैक्सेबल होगा। कुक क्यों टैक्सेबल है? बिकॉज ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हॉलीडे होम फैसिलिटी, हॉलीडे होम फैसिलिटी का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स, ये वहाँ घूमने गया होगा वेकेशन शिमला, सो कंपनी ने इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया वहाँ पे, हॉलीडे होम फैसिलिटी एट शिमला, 25,000 स्टूडेंट्स, सो हियर विल रिकॉर्ड 25। और क्या था हॉलीडे होम फैसिलिटी? फ्री सर्विसेज ऑफ कुक, क्यों टैक्सेबल है? गार्डनर, वॉचमैन, कुक क्यों टैक्सेबल होता है? when a person is, when, sorry not क्यों, when it is taxable when a employee is a specified employee, he is a specified employee students, although he is not a director nor a shareholder in this company, but उसका सैलरी itself 50,000 से ज़्यादा है। और ये सब भी ऐड करेंगे ना, एंटरटेनमेंट बोनस, वो सब ऐड करना पड़ता है, बट आपको इतना डिटेल्स में नहीं आता है स्टूडेंट्स। ओके, सो योर सैलरी एक्सीड्स इज अबाउ 50,000, यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? ये भी हमने पढ़ लिया, और क्या बचा अभी? ये हो गया 19,000, फ्री मील्स हो गया, हॉलीडे होम फैसिलिटी हो गया, सैलरी ऑफ कुक हो गया, engaged by, paid by the employer. Okay, on March 10 Ranjit purchases ornaments for Mrs. Ranjit for rupees 1 lakh, payment is made by credit card given by the company। तो ये ornaments का खर्चा कंपनी उठा रही है, so again it's a perquisite students। उनके वाइफ का खर्चा है, वो उनका ज्वेलरी है, so students ज्वेलरी या ornaments, जो भी उन्होंने टर्म यूज़ किया ornaments ही है। ornaments through
सीसी क्रेडिट कार्ड, हाँ मैंने शॉर्ट में सीसी लिख दिया है, प्रोवाइडेड बाय कंपनी से मिला है ना क्रेडिट कार्ड आपको, और ये ऑर्नामेंट्स की वैल्यू है 1 लाख स्टूडेंट्स। ओके, ये भी एक तरह का परक्विजिट है। ओके, और क्या था स्टूडेंट्स? Payment is made by on March 31st, company sells a fridge for rupees 10,000. Cost of the fridge to the company is 65,000. Date of purchase March 10. Students, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ये आपको एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ये आईपीसीसी में पूछा जा सकता है, आपको नहीं पूछना चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग स्टूडेंट्स, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ना, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ये नहीं करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। ये March 31st ना यहाँ से स्टार्ट होता है, आई एम कैंसिलिंग दिस। March 31st 2020, employer company sells a fridge 10,000, cost of the fridge so and so, date of purchase so and so, it is used for business। ये जाने दो, पूरा सेंटेंस मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये पूरा पर्पस फॉर इट्स ट्रांसफर बिफोर रन, चलो ये पूरा मैंने सेंटेंस ही कैंसिल किया, फॉरगेट इट। हाँ, यूज़ ऑफ एसेट होगा तो 10%, क्योंकि सिंपल है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, सो ये आपको नहीं पूछेगा, सो लेट इट बी, जाने दो। अच्छा, नाउ रंजीत कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,500 टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 80C में आता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,000, एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? 15,000। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का लिमिट कितना होता है? 12%। 12% ऑफ व्हाट? सैलरी। आपका सैलरी देखो 5 लाख है, 5 लाख का 12% करेंगे तो 60,000 आएगा स्टूडेंट्स, यस। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया? वहाँ देखो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ 15,000, लिमिट है 60,000, 5 लाख का 12% है 60,000। एम्प्लॉयर कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन अप टिल 60,000, इट वोंट बी टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टिल 60,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 15,000 ओनली, सो नॉट टैक्सेबल। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर रंजीत हैज़ परचेज, ये 80C में आता है, मेडिक्लेम प्रीमियम 80D में आता है, रंजीत हैज़ नाइड। सो सैलरी पूरा हो गया स्टूडेंट्स, अभी टोटल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक पहले टोटल कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। 80C है उसके अंदर, 80C है, 80D भी है। सो स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख प्लस 22 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 15 18 40 31 25 10 एंड 1 लाख। इट इज 796 स्टूडेंट्स, टोटल आ रहा है 7,96,000। इसको हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से एक डिडक्शन तो कंपलसरी है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है आपको? 50,000 और gross salary which is 796, whichever is less, obviously 50,000 less है। एक प्रोफेशनल टैक्स मिलता है और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड, बट स्टूडेंट्स आई कांट डिडक्ट। देखो यहाँ मैंने ऐड किया, इट शुड बी एडेड, नो डाउट, इट्स ट्रीटेड एज इनकम। लेटर ऑन डिडक्शन इज अलाउड, बट आई वोंट अलाउ इट, सिंपल रीजन, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंटरटेनमेंट अलाउंस कौन माइनस कर सकता है, कौन डिडक्ट कर सकता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जाने दो स्टूडेंट्स, भूल जाओ। सो हमें नेट सैलरी आ जाएगा 796 माइनस 50। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट सैलरी। $746। कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था स्टूडेंट्स? 746 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था स्टूडेंट शायद ऐसा, हाँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 3 लाख, इट इज गिवन 3 लाख है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो लिखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल कर लो। 746 प्लस 3 लाख विल बी 10,46,000। दिस इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से आपको डिडक्शंस मिलते हैं स्टूडेंट सेक्शन 80, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। तो देखो डिडक्शन है क्या, कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80? यहाँ स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये यहाँ तो सैलरी बोनस वगैरह यहाँ तो कुछ नहीं था। एक होता ना प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूशन। रंजीत परचेज ऑर्नामेंट्स, ये नहीं, पेमेंट इज मेड बाय सो एंड सो, कहाँ गया रंजीत? हाँ, रंजीत कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,500 टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये मिलेगा 15,500। एंड ही हैज़ परचेज सम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ये भी 80C में आता है, दोनों आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मैं दोनों लिखूंगा।
ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज 15,500 एंड 1,20,000. चलो ठीक है. ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया 15,500. परचेज ऑफ, अच्छा एटीसी लिखना भूल गया, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ सुन. एटीसी परचेज ऑफ नोटिफाइड डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. मैं शॉर्ट में जस्ट यहीं तक लिख रहा हूँ नोटिफाइड डिबेंचर्स. बट इज नोटिफाइड डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ऐसा पूरा स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स में. एंड 1,20,000. ठीक है, फिर इसको हम लोग टोटल करते हैं. सो दिस विल कम टू 1,35,500 और 1,50,000 विच एवर इज लेस. सो कंपेयर करो 135 150 विच इज लेस, ऑब्वियसली 135. सो आउटर कॉलम में 135,500 ही लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे पहले बार आप ये मेडिक्लेम, ये पूरा चैप्टर ही अलग है स्टूडेंट्स सेक्शन 80 का. सो हियर वी हैव, ही हैड मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिज डिपेंडेंट चिल्ड्रन 5,000, फॉर इंडिपेंडेंट पेरेंट्स 30,000. डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ हिज सो एंड सो. चलो ठीक है, मेडिक्लेम प्रीमियम 5,000 चिल्ड्रन का मिलेगा, 80D में मिलता है वो. आई विल राइट 80D मेडिक्लेम प्रीमियम. वहाँ पे क्लियरली टर्म यूज किया है फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन. अगर इंडिपेंडेंट होगा ना तो हम नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज कवर्ड अंडर ATC, over there whether children are dependent independent, major minor, married unmarried, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए इट इज कंपल्सरी, चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट, देन ओनली दैट पर्सन कैन पे प्रीमियम फॉर हिज चिल्ड्रन. ओके, कितना पे किया उसने स्टूडेंट्स? कुछ 5,000 दिया उन्होंने, 5,000. ओके, एंड ही ऑल्सो पेड मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स. मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर पेरेंट्स. हाँ, नाउ पेरेंट्स के लिए देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स, देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन कि पेरेंट्स डिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. 30,000. देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन फॉर पेरेंट्स. सॉरी. सो आउटर कॉलम विल रिकॉर्ड. स्टूडेंट्स अगेन ये पूरा अलग चैप्टर है, वहाँ डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे. Right now allowed is only 25,000. Okay, actually ऐसा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे फॉर हिमसेल्फ वाइफ एंड चिल्ड्रन ही कैन क्लेम 25,000. पेरेंट्स के लिए पे किया तो और 25 मिलेगा. सॉरी, इफ पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन देन एक्स्ट्रा 25,000 भी मिलेगा. यर नथिंग स्पेसिफाइड एज सच कि पेरेंट्स हियर आर सीनियर सिटीजन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है. ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी अजम्पशन, बट मैक्सिमम डिडक्शन पॉसिबल अंडर 80D इज 50,000. हस्बैंड वाइफ साथ में एंड चिल्ड्रन, इनका 25,000 वो लोग क्लेम कर सकते हैं. एंड फॉर पेरेंट्स दे कैन क्लेम सेपरेट 25,000 इफ दे आर सीनियर सिटीजन. टोटल कैन नॉट एक्सीड 50,000. बट अगेन आई रिपीट, वो पूरा सेपरेट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में. अभी मैं खाली ऐसा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इफ दे हैव गिवन अस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 तो व्हाट टू डू, क्या होता है वो आपको GTI से माइनस करना पड़ता है. दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग. बट हमारा फोकल पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी. बट इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ में डिडक्शंस भी आते हैं, सो यू मस्ट नो हाउ टू रिकॉर्ड दोज डिडक्शंस. सो नेट आंसर, फाइनल आंसर इज 8,85,500. 885,500. दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम. ओके, सो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हुआ था स्टूडेंट्स. ये हमारा सोल्यूशन था. कोई ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी नहीं है. एंड देन वी वेंट ओवर हियर. ओके, अगेन स्टूडेंट्स अगर ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का हमने कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स? एम्प्लॉयर कहाँ गया? कुछ था ना, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. रंजीत कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,500, ये हमने ATC में लिखा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 15,000. लिमिट कितने का है? 12% ऑफ सैलरी का. ठीक है, सो 12% ऑफ सैलरी का मैं नोट लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे 12% ऑफ सैलरी, सो 12% ऑफ 5 लाख
इज 60,000, है ना, ये नोट है स्टूडेंट्स, ओके. वेराज एम्प्लॉयर्स contribution is only 15,000, मतलब लिमिट 60,000 का है, बट आपने 60,000 का, बट आपने कंट्रीब्यूट 15 किया, मतलब वो पूरा 15,000 आपका एग्जम्प्ट माना जाएगा बिकॉज यू आर विद इन द लिमिट. इसके लिए हमने वो लिखा ही नहीं इनकम फ्रॉम सैलरी में. ओके, दैट्स ऑल.